going to tell you about the class and object. Python is an object-oriented programming language. Almost everything in a Python is an object with its property and method. A class is like an object constructor or blueprint for creating object. Create a class. What is a class? Class is a collection of objects. And what is an object? Object is a same type of property, things like table, chair, and bird. Birds are have a two wings, two legs, one beak, and this is the common property of bird. And collection of different type of bird group is called class bird. So to create a class, use the keyword class. Create a class, name my class with a property name x. Class, my class, x is equal to 5. Here I have defined the class my class and its property x is equal to 5. Now I can create the object. Now we can use the class name my class to create the object. Create an object, name p1 and print the value of x. p1 equals to my class. Print p1 dot x. It will print the file. The init function. The example above are classes and object in their simplest form and are not really useful in real life application. While the collection of objects are defined differently with the use of a special property of object, like parrot is green, crow is black. So this is the special property of the object. To understand the meaning of class, we have to understand the built-in init function. All classes have a function called init function, which is always executed when the class is being initiated. ये inbuilt function होता है जो कि जैसे ही class हम use करते हैं वो run हो जाता है. Use the init function to assign the value to object, property or other options that are necessary to do when the object is being created. Create a class, name, person. Use the init function to assign the value for the name and age. Class person. अब हमने person नाम का एक class बनाया जिसमें define किया init function, इसमें लिखा self, name, age. अब self जो है वो use करते हैं और dot name. तो उसमें नेम की वैल्यू आएगी और उसको फिर हम प्रिंट करेंगे. नाउ यू डिफाइन द ऑब्जेक्ट p1 इक्वल्स टू पर्सन जॉन 36. प्रिंट p1 नेम, प्रिंट p1 एज. नोट दैट init function is called automatically every time the class is being used to create a new object. अब क्या होगा इसमें, जब हम इसको प्रिंट करेंगे तो जॉन और एज प्रिंट हो जाएगी. कैसे होगी इसको हम पाइथन में देखते हैं. इसमें ये देखिए, ये जो इन्होंने बताया था वो फंक्शन हम यूज कर रहे हैं और प्रिंट करेंगे. ये इसमें सेल्फ यूज करके हम लोग ने प्रिंट किया और जो ऑब्जेक्ट हमने ऊपर बनाया था क्लास और ऑब्जेक्ट उसको भी प्रिंट करेंगे. माई क्लास x is equal to 5 और प्रिंट p1 माई क्लास. अब इसको हम सेव करके प्रिंट करते हैं. तो ये प्रिंट करेगा 5 और जो क्लास पर्सन क्रिएट हुआ प्रिंट करेगा जॉन और 36. अब हम सेल्फ की जगह सेल्फ ऑप्शन लिया, सेल्फ पैरामीटर यूज किया था, उसकी जगह हम कोई और दूसरा नाम भी ले सकते हैं. माई सिली ऑब्जेक्ट, हमने ऑब्जेक्ट के लिए माई सिली ऑब्जेक्ट यूज कर लिया और पैरामीटर की जगह ABC यूज कर लिया. यहाँ पे क्या यूज हो रहा था, सेल्फ यूज हो रहा था. ये देखिए सेल्फ यूज हो रहा था, है ना. अब सेल्फ पैरामीटर के साथ साथ मेथड भी क्रिएट किया है इन्होंने. यहाँ माई सिली ऑब्जेक्ट क्या है, सेल्फ पैरामीटर है और माई फंक्शन क्या है, एक मेथड है. तो पाइथन में हम मेथड भी डिफाइन कर सकते हैं. कैसे करते हैं ये देखते हैं.
Object can also contain method. Method in object are function that belong to the object. Let us create a method in a person class. अब कोई फंक्शन को अगर हमें कॉल करना है तो मेथड बनाएंगे कहाँ पे, क्लास के अंदर उस ऑब्जेक्ट के लिए. तो हमने किया डिफाइन माई फंक्शन सेल्फ हेलो माई नेम इज सेल्फ नेम और पर्सन जॉन कॉमा 36 है ना. तो माई फंक्शन जब हम कॉल करेंगे तो वो नाम को प्रिंट कर देगा. सेल्फ पैरामीटर्स इज रिफरेंस द करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड इज यूज्ड टू एसेस द वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू क्लास. उस क्लास के वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए हम सेल्फ पैरामीटर यूज करते हैं. द सेल्फ पैरामीटर इज रेफरेंस टू करंट इंस्टेंस ऑफ द क्लास एंड यूज्ड टू एसेस द वेरिएबल दैट बिलोंग्स टू द class. It does not have to be named self. You can call it whenever you like, but it has to be first parameter of any function. इसकी जगह कुछ और भी यूज कर सकते हैं जैसा अभी हमने उधर बताया, लेकिन ये फर्स्ट पैरामीटर होना चाहिए. जैसे माई सिली ऑब्जेक्ट हमने किया और माई फंक्शन ABC कर दिया. ठीक है. अब माई फंक्शन ABC किया और प्रिंट किया नेम को और माई फंक्शन को कॉल किया. तो उसने क्या किया, उसको प्रिंट करेगा. कैसे करेगा, सेल्फ माई सिली ऑब्जेक्ट दिया हमने, यहाँ पर प्रिंट किया और उसको प्रिंट कर दिया. जब प्रिंट करेंगे तो वो नेम और एज को प्रिंट कर देगा. कैसे करेगा देखते हैं. हेलो माई नेम इज जॉन, my age is 36. ठीक. यहाँ पर क्योंकि एज न्यूमरिक है इसलिए उसको प्लस करके नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम यहाँ पर ऐसे कर रहे हैं इसको. ठीक है. तो ये देखिए एज इज 36. ठीक. अब हमने क्या किया, एज के पैरामीटर को चेंज कर दिया. एज को हमने 36 की जगह 40 कर दिया. अब 40 करके फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या करेगा, एज बदल जाना चाहिए. तो कैसे बदलेगा, ये देखिए द एज इज, यहाँ पे 36 था, यहाँ पे 40 आ गया. ठीक. अब हमने कहा कि हम पैरामीटर को डिलीट करना चाहते हैं तो हमने कहा del p1 एज. तो वो क्या करेगा, जब फंक्शन को कॉल करेगा तो एज को डिलीट कर देगा. तो वो उसको नहीं दिखाएगा. तो क्या करेंगे हम, ये देखिए एरर दे दिया ना. द मोस्ट रिसेंट कॉल लास्ट. क्या किया उसने, माई फंक्शन किया. एट्रीब्यूट पर्सन ऑब्जेक्ट्स हैव नो एट्रीब्यूट एज. अब क्योंकि एज है ही नहीं है, डेल हो चुका है, तो वो प्रिंट ही नहीं करेगा. ठीक है. अब प्रिंट नहीं करेगा तो एरर दे देगा, इसलिए इसको हैश लगा दिया. हैश लगाने से रिमार्क बनता, बताया था ना. अब क्या करेगा, डिलीट द p1 ऑब्जेक्ट. अब हम चाहते हैं ऑब्जेक्ट ही डिलीट हो जाए, जो हमने पर्सन ऑब्जेक्ट बनाया है वो ही डिलीट हो जाए. तो उसको डिलीट कर देंगे, लेकिन अब उसे हम प्रिंट नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमने लगाया पास स्टेटमेंट. The class definition cannot be empty, but if you for some reason have a class definition with no content, put in the pass statement to avoid getting an error. लेकिन अब उसको प्रिंट नहीं कर सकते तो एरर देगा, इसलिए हमने पास स्टेटमेंट लगाया, जो हर बार हमने कई बार बताया आपको अपने लेक्चर में. सो इसको अब रन करते हैं. ये देखिए द पास स्टेटमेंट यूज हो गया. डिलीट p1 ऑब्जेक्ट कर देगा, और क्योंकि हम जब प्रिंट करेंगे तो एरर ना दे इसलिए हमने पास स्टेटमेंट लगा दिया. सो टुडे इट इज ऑल व्यूअर्स. Thank you, and if you like it, please share and subscribe. Thank you, viewers.